ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਡ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਾइंडली ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਨੀ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਨੀ ਡੇ 11 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਹਕੀਮ ਅਜ਼ਮਲ ਖਾਨ। ਹਕੀਮ ਅਜ਼ਮਲ ਖਾਨ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1868 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ 53ਵੀਂ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਇਨੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਬਾਇਨੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੋਪੈਕਸ 21 ਥੀਏਟਰ ਲੈਵਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀਨੈਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਾਈਨੀਅਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ INS ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰੀ ਰਿਵਰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਂਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ 2021। ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ 2021 2 ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕੀ ਐਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਔਰ EY ਐਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੋਸ ਟਰਿਓਜ਼ੋ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ NNIF ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਨੇਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਨੇਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਲਈ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੋਏ ਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, 27 ਫੈਬਰਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੋਏ ਫੇਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਟਾਈਟਲ 57th ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਮਾਨਸਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੀਕਾ ਸ਼ਿਓਖਾਨ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਡੀਆ 2020 ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੇ ਨੇ यूपी ਦੀ ਮਾਨਿਆ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
2018 अर्जुन अवार्ड 2018 का अर्जुन अवार्ड एथलीट ने जिहड़े हीमा दास असम तो बिलोंग करते हैं, इन्हों DSP बनाया गया असम के विच चीफ मिनिस्टर सरबानंद सोनोवाल द्वारा। टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाने ने, इसके जो चीफ ने योशीरो मोरी इन्होंने रेजिग्नेशन दिता है। अभिन भास्कर देवादिगा कर्नाटका तो बिलोंग करते हैं और NC सोजन केरला तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने अंडर 20 मैन और वूमेन 200 टाइटल जिते है 36 नैशनल जूनीयर एथलैटिक्स चैंपीयनशिप दे विच। 36 नैशनल जूनीयर एथलैटिक चैंपीयनशिप कित्थे ऑर्गेनाइज की गई? गुवाहाटी दे विच ऑर्गेनाइज की गई है, याद रखांगे गुवाहाटी असम दे विच इंदिरा गांधी एथलैटिक स्टेडियम दे विच, ठीक है, या सूजन सराई स्टेडियम दे विच। प्रवीण चिरावल ट्रिपल जंप टाइटल जिते ने। अर्जुन वास्कले MP दे ने और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़िया अंडर 18 1500 मीटर्स रेस का। मराठी राइटर रंगानाथ पठारे, इंपोर्टेंट रहेगी न्यूज़ कि मराठी राइटर रंगानाथ पठारे इन्हों विंदा करांदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। सब तो पहले डायरैक्टली अवार्ड पूछा जाएगा, विंडा करांदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस फील्ड के दिता जाता है? तो यह किस फील्ड के दिता जाता है? तो यह दिता जाता है ऑथर यानी कि लिटरेचर के फील्ड के ऑथर को दिता गया। रंगानाथ पठारे का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। ऑस्ट्रेलियन रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने पीपल्स चॉइस फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड दिते है क्वीनसलैंड फॉरेस्ट फायर की पिक के लिए। पाकिस्तान सक्सैसफुली टेस्टेड क्रूज मिसाइल बाबर मिसाइल है जो किस कंट्री दी है? पाकिस्तान दी है, याद रखेंगे। चाइना मार्स मिशन ताइवान सक्सैसफुली ऑर्बिट दे विच एंटर होया मार्स के ऑर्बिट दे विच। 6वीं कंट्री बन चुकी है मार्स मिशन के लिए सक्सैसफुली करने वाली, ये याद रखेंगे। चाइना के मार्स मिशन के विच जो रोवर है, रोवर का की नाम है? उतोपिया, ठीक है। ताइवीन 1 का मतलब की है? तो क्वेश्चंस टू हेवन, ये इंपोर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है ये क्योंकि एक पोएम है क्वेश्चंस टू हेवन तियानवेन। इसनों लॉन्च किया गया सी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा। टर्की की स्पेस एजेंसी ने भी मून मिशन की अनाउंसमेंट की है। मून मिशन 2023 का मून मिशन लॉन्च करेगी टर्की की स्पेस एजेंसी। कैपिटल अंकारा है टर्की की, अंकारा दे विच ही टर्की की स्पेस एजेंसी का हैडकुआटर है जो कि दिसंबर 2018 के विच ही बनाई गई, ठीक है। अच्छा, आप स्पेस की गल कर रहे हैं और इस अगर इंडिया की गल करते हैं, इंडिया के बारे आप गगनयान प्रोग्राम डिस्कस किया। गगनयान प्रोग्राम के स्लाइड चेंजिज आए हैं, ठीक है। हालांकि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं बनेंगे लेकिन नॉलेज परस्पैक्टिव तो याद रखेंगे कि गगनयान मिशन जो कि 2021 के आप कहा सी दिसंबर के व्योम मित्र रोबोट को भेजा जाएगा और 2022 के मैंड मिशन भेजा जाएगा, ठीक है। इस स्लाइड चेंजिज ये किए गए हैं कि जोड़ा 2021 के व्योम मित्र है ये तो भेजा जाएगा, इस तो बाद एक होर डमी प्रोजेक्ट भेजा जाएगा, उस तो बाद मैंड मिशन भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन एनुअल फैसटिवल काला घोड़ा आर्ट्स फैसटिवल मुंबई महाराष्ट्र के परफॉर्म किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा MP दे विच जलाभिषेकम कैंपेन के अंडर इनॉग्रेशन की गई 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स की। सेंट्रल कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 100 करोड़ रुपीज़ की ग्रांट दी है, 100 करोड़ रुपीज़ की ग्रांट अप्रूवल दी है असम की ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी जेंडर पार्क कोझिकोडे केरला दे विच ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है जी। कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के विच अज डिस्कस करांगे ओलंपिक्स। हुणे आपां डिस्कस किया कि जो टोक्यो ओलंपिक्स ने ये 2021 के ओलंपिक्स ने इसके जोड़े हैड सीगे इन्होंने रेजिग्नेशन दिता है।
तो ओलंपिक्स की अगर आप गल करते हैं 21 के समर ओलंपिक्स टोक्यो जापान 2020 के परफॉर्म किए जाने सी नहीं किए गए ड्यू टू कोविड-19। 24 समर ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस 28 समर ओलंपिक्स लॉस एंजलस कैलीफोर्निया USA। ठीक है, इसी तरीके नाल विंटर ओलंपिक्स भी ने तो 22 विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चाइना और 26 विंटर ओलंपिक्स इटली दे विच मिलाने कोर्जे एम्पिजो इटली। ठीक है जी, इस तो इलावा एक चीज़ होर अगर याद रखनी हो रख सकते हैं कि 2032 ओलंपिक्स के लिए इंडिया ने भी बिड की हुई है कि इंडिया भी हो सकता है कि 2032 के ओलंपिक्स इंडिया के परफॉर्म किए जाए। ठीक है, ये जो बेसिकली अनाउंसमेंट की जाएगी उदों देखांगे, लेकिन हो सकता है क्योंकि इंडिया ने भी इस बिड की हुई है। चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ने, अज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ डिस्कस करांगे। तो वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड रेडियो डे 13 फैबररी नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, बेसिकली यूनैस्को द्वारा, यूनैस्को जिसका हैडकुआटर पेरिस फ्रांस दे विच है, यूनैस्को की ही गल करते हैं, ऑड्रे ऑजले इसके हैड ने। इंडिया दे विच 38 यूनैस्को की वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स ने, इंपोर्टेंट रहेगा। यूनैस्को के रिसेंटली गवालियर और ओरछा सिटीज़ MP की गवालियर और ओरछा सिटीज़ नूं सिटीज़ दे विच हैरीटेज सिटीज़ दे विच ऐड किया गया सी। ठीक है जी, यूनैस्को की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहली बार इसनूं 2011 के यूनैस्को द्वारा ऑब्जर्व किया गया सी। हर साल इसनूं 13 फैबररी नूं ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है जी, इस तो इलावा दो होर इंपोर्टेंट डेज डिस्कस कर लेने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बर्थ एनिवर्सरी 12 फरवरी नूं ऑब्जर्व की गई, 12 फरवरी नूं ऑब्जर्व की गई है और ये फाउंडर सीगे आर्या समाज के। ठीक है, दो इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखांगे। आर्या समाज डायरैक्टली पूछा जाता है कि किन्ना ने फाउंड किया सी? स्वामी दयानंद सरस्वती। बर्थ एनिवर्सरी कदों है? तो 12 फैबररी। इस तो इलावा नैशनल वूमेंस डे, ये भी इंपोर्टेंट है। इंडिया के नैशनल वूमेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 13 फैबररी नूं हर साल एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जिन्होंने नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम तो जानिया जाता है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया पॉलिटी के भी इन्हों का नाम आप काफ़ी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस का सैशन भी हैड किया सी। तो नाइट एंगल ऑफ इंडिया 1879 के इन्हों का बर्थ होया सी। ठीक है, इस तो इलावा नाइट एंगल ऑफ इंडिया तो इलावा इन्हों एक होर नाम तो जाना जाता है भारत कोकिला। इंपोर्टेंट रहेगा भारत कोकिला के नाम तो किन्हों जाना जाता है? डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक दे विच। तो नैशनल वूमेंस डे, बर्थ एनिवर्सरी सरोजनी नायडू, नाइट एंगल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला 1879। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी विल श्योरली सस्टेन नाम की बुक किन्ना द्वारा लिखी गई है? तो अभिजीता गुप्ता द्वारा एक बुक लिखी गई है वी विल श्योरली सस्टेन। ठीक है, वी विल श्योरली सस्टेन अभिजीता गुप्ता। ठीक है, इस तो इलावा रेणुका सिंह लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट आप डिस्कस कर चुके हैं कि दलाई लामा दे कोट्स दी बुक नूं एडिट करके बनाया गया रेणुका सिंह द्वारा लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, दूसरा पवन सी लाल बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। यस मैन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर बुक नूं किन्हां ने लिखिया? पवन सी लाल। हामिद अंसारी बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट बुक नूं किन्हां ने लिखिया? हामिद अंसारी। ठीक है, RP गुप्ता इन्हां रिलेटेड एक बुक है, डिस्कस करते हैं। RP गुप्ता द्वारा एक बुक लिखी गई है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमोंटिंग पास्ट लेगेसी।
टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लैगेसी। बुक नूं किन्हां ने लिखिਆ आर.पी. गुप्ता ने लिखिਆ। इस बुक नूं रिलीज़ किया गया है जुआल ओरम द्वारा। जुआल ओरम कौन ने? जुआल ओरम लोक सभा दे विच MP ने और चेयरमैन ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस दे। ठीक है, आप डिस्कस करते होंगे लोक सभा दे विच डिफरेंट कमेटीज़ होंदियां ने, तो उसदे विच एक कमेटी है चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के जो चेयरमैन ने जुआल ओरम, इन्हां द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट है हू इज़ अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्य सभा। कल की क्लास के भी आप डिस्कस किया कि गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर सीगे 15 तरीक नूं रिटायर हो रहे हैं, यानी कि अज के दिन रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, ये की सीगे? ये सीगे लीडर ऑफ ओपोजिशन। ठीक है, पूरी डिटेल डिस्कस कर लेने। वैसे थोड़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ है कि हुंदा कि जिहड़ा लोक सभा है या राज्य सभा है, इस दे विच जिहड़ी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी दे विच उन्हां दे लीडर हुंदे ने। ठीक है, प्लस जो ओपोजिशन पार्टी हुंदी है, अगर उसदे लवे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स ने, ठीक है, ओपोजिशन दे विच भी लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाने दे लई उन्हां लवे पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए ने। आई थिंक शायद 1/10 सीट्स होनी चाहिए ने। तो अगर वो हुंदियां ने तो वो की कर सकती है, तो वो ओपोजिशन पार्टी अपना लीडर ऑफ ओपोजिशन अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, लोक सभा दे विच रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी है, लेकिन ओपोजिशन पार्टी कोल यानी कि कांग्रेस कोल लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाने के लिए नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। इस करके लोक सभा दे विच कोई भी इस टाइम लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है। ठीक है, राज्य सभा दे विच लीडर ऑफ ओपोजिशन सीगे गुलाम नबी आज़ाद लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ ओपोजिशन भी रह चुके हैं, लगातार 6 साल लीडर ऑफ ओपोजिशन रहे ने। और हुण इन्हां नूं रिप्लेस करके मल्लिका अर्जुन खारगे इन्हां नूं लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया गया। ठीक है, तो यह पूछे जा सकते हैं राज्य सभा MP कित्थों सी? जम्मू एंड कश्मीर तो सीगे। यह पूछे जाएंगे तो राज्य सभा MP करनाटका तो ने, ठीक है, अगर गल करते हैं फर्स्ट लीडर ऑफ ओपोजिशन की, वैसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेने। श्याम नंदन मिश्रा राज्य सभा दे विच पहले लीडर ऑफ ओपोजिशन सीगे। ठीक है, इस तो इलावा 3 इंपोर्टेंट नाम 3 इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो सतीश्वर बालाकृष्णन एगन लाइफ इंश्योरेंस जो कि इंडिया की पहली डिजिटल ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इंडिया की पहली डिजिटल ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है एगन लाइफ इंश्योरेंस। इसने सतीश्वर बालाकृष्णन नूं MD CEO अपॉइंट किया है। ठीक है, अजय माथुर जो कि हैड ने एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैड ने, इन्हों डायरैक्टर जनरल बनाया जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कई बार डिस्कस किया आपने। पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट याद होएगा हर एक नूं 2015 दे विच साइन किया गया पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, या कहांगे COP21 दे विच साइन किया गया सी। ठीक है, COP25 स्पेन मैड्रिड दे विच रही, COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच रहेगी। ठीक है, तो पैरिस एग्रीमेंट दे विच की होया सी? इंडिया फ्रांस ने मिलके ISA बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसका हैडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा दे विच है। ठीक है, तो इस दे डायरैक्टर जनरल बनाए जा रहे हैं अजय माथुर। आकांक्षा अरोड़ा, ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। आकांक्षा अरोड़ा एक इंडियन ओरिजिन ने। ठीक है, इन्होंने कैंडीडेसी अपॉइंट की अपनी सैक्रटरी जनरल ऑफ UN दे सैक्रटरी जनरल बनने के लिए। बेसिकली अगर डिस्कस करना होवे कि यूनाइटेड नेशन है, जो यूनाइटेड नेशंस दे 1945 दे विच बनाई गई यूनाइटेड नेशंस, अगर आप गल करते हैं न्यूयॉर्क के विच हैडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटरस इज दे हैड ने। ठीक है, एंटोनियो गुटरस इज दे सैक्रटरी जनरल ने। ठीक है, इन्हों रिप्लेस करके इन्हों की टर्म खत्म होएगी नैक्सट ईयर 31 जनवरी को, कहांगे 31 दिसंबर 2021 इन्हों का टैनूअर खत्म होएगा। तो इलैक्शनस होणगे, नवे अपॉइंट करने के लिए इलैक्शनस होंगे ने, तो इलैक्शनस दे विच खड़े होने जा रहे हैं इंडियन ओरिजिन।
इंडियन ओरिजिन आकांक्षा अरोड़ा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड MOU विद मेघालय पुलिस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई चलान की इंप्लीमेंटेशन के लिए मेघालय पुलिस के नाल एग्रीमेंट साइन किया है यस बैंक ने। ठीक है, ये कहांगे SBI के नाल मेघालय पुलिस ने एग्रीमेंट साइन किया है ई चलान एग्रीमेंट याद रखांगे। ठीक है, इस तो इलावा वाहन एप्लीकेशन याद रखांगे, इस तो इलावा सारथी एप्लीकेशन याद रखांगे। ई चलान जो है वाहन एप्लीकेशन और सारथी एप्लीकेशन की हैल्प के नाल इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, किसने किया है? मेघालय पुलिस ने किया है। इस तो इलावा मेघालय के बारे याद रखांगे, मेघालय के गवर्नर का नाम इंपोर्टेंट रहेगा सत्यपाल मलिक, रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी सत्यपाल मलिक। ठीक है जी, SBI का याद रखांगे दिनेश कुमार खारा का नाम इंपोर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जा चुका है। SBI के चेयरमैन कौन ने? तो दिनेश कुमार खारा। ठीक है जी, बाकी बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, हुण कमेंट बॉक्स में तुसीं दसनियां ने। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल आप विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद महाराष्ट्र स्टेट टू ब्रिंग लोकल आर्टिशियंस एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इनटू ई-कॉमर्स फोल्ड। किसने पार्टनरशिप की है? महाराष्ट्र के नाल फ्लिपकार्ट ने महाराष्ट्र के नाल पार्टनरशिप की है MSME बिजनेस नूं प्रमोट करने के लिए, ई-कॉमर्स लेके आने के लिए, या कहांगे ऑनलाइन लेके आने के लिए। ठीक है, MSME और लोकल आर्टिशियंस नूं ऑनलाइन लेके आने के लिए फ्लिपकार्ट के नाल किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के गवर्नर उद्धव ठाकरे। ठीक है, गवर्नर की गल करते हैं भगत सिंह कोश्यारी इंपोर्टेंट रहेगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में दसना भगत सिंह कोश्यारी ने रिसेंटली एक बुक रिलीज़ की गई सी भगत सिंह कोश्यारी द्वारा। किस बुक नूं रिलीज़ किया सी? भगत सिंह कोश्यारी ने। ठीक है, एक बुक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने रिलीज़ की सी रिसेंटली, दोनों दसनिया ने। ठीक है, इस तो इलावा आप डिस्कस करते हैं NSDC और टाटा मोटर्स के रिलेटेड न्यूज़। तो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है जो 2008 दे विच बनाई गई, न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। अगर आप गल करते हैं मनीष कुमार इस दे MD ने। ठीक है, NSDC दे काफ़ी इंपोर्टेंट है। अच्छा, NSDC तो ही अगर स्किल डेवलपमेंट की गल आती है तो कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी स्किल डेवलपमेंट इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट ओपन किया जा रहा है कित्थे? गांधीनगर गुजरात दे विच। ठीक है, इस तरीके नाल पहले फैक्ट याद रखा करो, जिन्ने भी फैक्ट किसी भी चीज़ के नाल इंटरलिंक हो सकते हैं, इंटरलिंक करके ईजली याद रखते हैं। इस तो इलावा न्यूज़ की है तो NSDC ने एग्रीमेंट साइन किया है HP इंडिया के नाल। HP इंडिया तुसीं सुनी होएगी, लैपटॉप्स होंदे ने, प्रिंटर्स होंदे ने HP दे। ठीक है, जिहड़ी HP कंपनी है, HP इंडिया ने पार्टनरशिप की है NSDC के नाल टू प्रोवाइड साइंटिफिकली डिजाइंड वर्कशीट्स एंड कंटेंट टू सपोर्ट होम लर्निंग एंड अर्ली चाइल्डहुड स्किल डेवलपमेंट। इंडिया दे विच अर्ली चाइल्डहुड स्किल डेवलपमेंट और होम लर्निंग के लिए सपोर्ट करने के लिए की किया जाएगा? स्पैशली डिजाइंड वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाएगी HP इंडिया और NSDC द्वारा। टाटा मोटर्स जो कि इंडिया की लार्जेस्ट व्हीकल मेकर कंपनी है, इसने की किया? मार्क लिट्सोसेला इन्हों MD CEO अपॉइंट किया इंडिया बिजनेस के लिए। ठीक है, हालांकि नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी एक बार याद रखेंगे क्योंकि टाटा मोटर्स इंडिया की लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट 2 व्हीलर कंपनी की गल करते हैं तो बजाज है। नेक्स्ट है हु हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू CRPF battalion to be named after Narayani Sena, the warriors of कूच बिहार। तुझे सुनी होगी कि सिटी है, एक सिटी कहांगे या पहले कहांगे कि डेंसिटी होया करती सी। ठीक है, कूच डेंसिटी इसी के नाम से एक सिटी है, कित्थे सिटी और डिस्ट्रिक्ट भी है, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट भी है वेस्ट बंगाल दे विच।
ठीक है। अगर आप गल करते हैं सब तो पहले थोड़ी पॉलिटिकल गल है कि असम, केरला, तमिलनाडु और वैस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स ऐसियां ने जिन्हां दे विच इलैक्शनस आने ने। इस साल इलैक्शनस आने ने 2021 दे विच, तो चारों स्टेट्स दे विच डेवलपमेंट काफ़ी जोरों पर रहेगा। काफ़ी इंपोर्टेंट स्कीम्स लॉन्च कीतियां जाणगियां, काफ़ी इंपोर्टेंट कहांगे इनोग्रेशनस कीतियां जाणगियां, प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। तो इन्हां दे रिलेटेड अज अपने लवे काफ़ी न्यूज़ ने। ठीक है, सब तो पहले वैस्ट बंगाल की गल करते हैं। वैस्ट बंगाल दे विच बीजेपी दे चीफ कहांगे या होम मिनिस्टर कहांगे इंडिया के अमित शाह पहले चीफ होंदे सीगे। ठीक है, उस तो बाद जदों होम मिनिस्टर बन गए तो अमित शाह होम मिनिस्टर ने इन्हां ने विजिट की। ठीक है, कित्थे विजिट की? वैस्ट बंगाल के कूच बिहार प्लेस दे विच, और इत्थे इन्हां ने अनाउंस किया कि यह जिहड़ी डेंसिटी सी, कूच बिहार डेंसिटी सी, इत्थे एक नारायणी सेना हुंदी सी। नारायणी सेना के नाम से, अच्छा इत्थे CRPF नहीं आएगा, CAPF आएगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। CFPF की एक बटालियन का नाम नारायणी सेना के नाम के उत्ते रखा जाएगा। ठीक है, इस तो इलावा होर इंपोर्टेंट इन्होंने अनाउंसमेंट्स की, होम मिनिस्टर ने पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं, और नितिन गडकरी रिलेटेड न्यूज़ अभी डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की CAPF बटालियन की नारायणी सेना के नाम से। ठीक है, इस तो इलावा ही अनाउंस्ड नेम CAPF ट्रेनिंग सेंटर, एक CAPF का ट्रेनिंग सेंटर का नाम जो कि ईस्टर्न जोन के है, उसका नाम चीला रॉय के नाम के उत्ते रखा जाएगा। चीला रॉय जो कि यंगर ब्रदर सीगे किंग नारा नारायण दे, किंग नारा नारायण, ये भी कूच डेंसिटी के नाल बिलोंग करते सी। और एक मैमोरीयल भी बनाया जाएगा और एट द बर्थ प्लेस ऑफ पंचानन ठाकुर के नाम के उत्ते एक बर्थ प्लेस भी बनाया जाएगा। ठीक है, बेसिकली सिंपल कहांगे वोटा खिंचण का एजेंडा है। ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसी तरीके नाल काम करती है। जो इलैक्शन नज़दीक होंदे ने तो इंपोर्टेंट रहेगा कि किन्ना ने अनाउंसमेंट की है और किन्ना दे नाम के उत्ते की है। कूच बिहार नारायणी सेना, ठीक है, दूसरा चीला रॉय और तीसरा पंचानन ठाकुर। ठीक है जी। नितिन गडकरी जो कि कौन ने? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने। इस तो इलावा MSME मिनिस्टर ने। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला CNG ट्रैक्टर। बेसिकली डीजल ट्रैक्टर नू कन्वर्ट करके CNG ट्रैक्टर बनाया गया है ताकि पॉल्यूशन नू भी कंट्रोल किया जा सके और अमाउंट या कहांगे जो किसानों की कहांगे कि खर्चा होंदा है एक्सपेंडिचर नू भी कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसनू बनाया गया है रावमेट टेक्नो सोल्यूशंस और टोमासेटो एकाइल इंडिया द्वारा, दो कंपनीज द्वारा बनाया गया है। हालांकि कंपनीज का नाम नहीं पूछा जाएगा, काफ़ी रेयर चांस है। डायरेक्टली याद रखेंगे लॉन्च किन्ना ने किया था? नितिन गडकरी ने किया। नैक्सट है जिहड़ी आपां गल कीती सी कि स्टेट्स दे विच विजिट हुई, वैस्ट बंगाल कवर कर लिया। असम दे विच कुछ दिन पहले आपां डिस्कस कीतियां सी, असम दे विच भी विजिट की सी, वैस्ट बंगाल दे विच भी विजिट की सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बाकी दो स्टेट्स बची हैं केरला और तमिलनाडु, इत्थे विजिट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है। डायरैक्टली इन्हां दे विचों क्वेश्चंस बननगे। ठीक है, मैं पूरी डिटेल लिख के लेके आया ताकि आप थोड़ा डिटेल भी डिस्कस कर लीए कि विजिट की तमिलनाडु और केरला की। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नूं इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप गल करते हैं सब तो पहले तमिलनाडु दे विच चेन्नई मैट्रो रेल फेज का एक्सटेंशन के लिए प्रोजेक्ट नूं इनॉग्रेट किया। रेलवे लाइन बिटवीन चेन्नई एंड आतीपत्तू और चेन्नई बीच दे विच रेलवे लाइन है जिहड़ी इसनूं इनॉग्रेट किया। ठीक है, होर भी डिफरेंट रेलवे प्रोजेक्ट्स नूं भी इन्होंने इनॉग्रेट किया। इस तो इलावा जो न्यूज़ एक होर इंपोर्टेंट रहेगी, अर्जुन मेन बैटल टैंक चेन्नई दे विच इंडियन आर्मी नूं अर्जुन टैंक है, जो अर्जुन टैंक है यह हैंड ओवर किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अर्जुन टैंक इंडियन आर्मी नूं कित्थे डिलीवर किया, कित्थे हैंड ओवर किया? चेन्नई दे विच। ठीक है, इस तो इलावा इन्होंने तमिलनाडु दे विच ही ग्रैंड एनीकट कैनाल सिस्टम आप डिस्कस किया सी। ग्रैंड एनीकट डैम है, काफ़ी इंपोर्टेंट डैम है तमिलनाडु दे विच, सब तो पुराना डैम है। स्टैटिक क्लास दे विच आपां डिस्कस किया सी। तो इत्थे ही इसकी रेनोवेशन के लिए फाउंडेशन स्टोन रखे है। एक डिस्कवरी कैंपस लगाया जाएगा IIT मद्रास दे विच, इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, तमिलनाडु दे विच। इस तो बाद केरला की विजिट हुई तो केरला दे विच प्रोपेलाइन डेरीवेटिव पेट्रोकैमिकल प्रोजैक्ट लॉन्च किया है, प्रोपेलाइन डेरीवेटिव पेट्रोकैमिकल प्रोजैक्ट, ठीक है। इस तो अलावा यह इंपोर्टेंट रहेगा रोरो वैसल्स या कहांगे फैरी सर्विस के तरीके नाल हुंदे ने ये, ठीक है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने दे सामान नूं ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन्हां दे नाम इंपोर्टेंट रहणगे, दो इंपोर्टेंट ने, आदि शंकर और CV रमन। MV आदि शंकर, MV CV रमन, इन्हां दे नाम दिते रोरो वैसल्स वैलिंगटन आइलैंड कोची दे विच लॉन्च किए गए, ठीक है। इस तो इलावा इंडिया की पहली फुल फ्लैज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरी काट कोचिन पोर्ट इनॉग्रेट की गई है, ठीक है। इस तो इलावा मैरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विज्ञान सागर दे विच इसनूं इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। एक बार दोबारा रिवीजन कर लांगे, 2 या 3 बार प्रोजैक्ट्स याद हो जाएंगे। सिंपली प्रोजैक्ट्स ने कि जिन्होंने इनॉग्रेट किया गया, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रैंड एनिकट कैनाल सिस्टम पूछा जाएगा, ठीक है, या पूछा जाएगा CV रमन और आदि शंकर रोरो वैसल्स कित्थे इनॉग्रेट किए गए ने, ठीक है। वेलिंगटन आइलैंड कोची दे विच, वेलिंगटन आइलैंड डायरैक्टली स्टैटिक दे विच पूछा जाएगा कित्थे है, ठीक है। इस तो इलावा सागरी कात इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कित्थे इनॉग्रेट किया गया, तो कोची केरला दे विच। इस तरीके नाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिजोऊ फिल्म डायरेक्टेड बाय विशाल पी चालीहा द्वारा एक मूवी डायरेक्ट की गई थी सिजोऊ, ठीक है। इसने 4 अवार्ड जीते ने। गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु दे विच ऑर्गेनाइज किया गया, इस दे विच 4 इंपोर्टेंट अवार्ड जीते इसने, ठीक है। बेस्ट डायरैक्टर का अवार्ड जीत्या, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीत्या। सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा किस लैंग्वेज दे विच मूवी है, ठीक है, तो यह बोडो लैंग्वेज दे विच मूवी है। बोडो लैंग्वेज जो कि असम और मेघालय वर्गी स्टेट्स दे विच बोली जाती है। इत्थे दी यह मूवी है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। सिजोऊ फिल्म विशाल पी चालीहा द्वारा डायरैक्ट की गई है, ठीक है जी, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके नाल फॉर एग्जांपल अगर आप गल करते हैं जलीकट्टू बारे आप डिस्कस कर चुके हैं, जलीकट्टू मूवी, ठीक है। होर भी इंपोर्टेंट मूवीज़ आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जलीकट्टू फैसटिवल पूछा जा सकता है कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया, तमिलनाडु दे विच किया जाता है, ठीक है। पोंगल फैसटिवल का हिस्सा है जलीकट्टू और पोंगल फैसटिवल तमिलनाडु। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विद कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च कैंपेन स्वलंबन साक्षत टू प्रमोट स्टैंड अप इंडिया स्कीम नू प्रमोट करने के लिए सिडबी ने कोवे यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के नाल मिल के कैंपेन की शुरुआत की है स्वलंबन साक्षत, ठीक है जी, याद रखेंगे। सिडबी की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहेगी। इस तो इलावा मास्टर कार्ड रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। बाकी स्टैटिक फैक्ट आप काफ़ी बार डिस्कस किए ने, नबार्ड के, सिडबी के, सेबी के, तीनों के इंपोर्टेंट मिलेंगे, याद रखेंगे। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्टैटिक फैक्ट रीड कर सकते हो। इन्होंने कोवे के नाल पार्टनरशिप की है स्टैंड अप इंडिया स्कीम नू प्रमोट करने के लिए। मास्टर कार्ड ने प्राइसलैस इंडिया कैंपेन की शुरुआत की है, प्रोग्राम की शुरुआत की है। प्राइसलैस इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? मास्टर कार्ड ने। किस दे लई? इंडिया के हैरीटेज नू शो करने के लिए, ठीक है, डोमैसटिक और ग्लोबल ट्रैवलर्स नू। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ इंडिया के बारे विजिट करते हैं तो उत्थे किस तरीके का हैरीटेज है, कि किस तरीके के कल्चर ने, ट्रेडिशनस ने, उन्होंने दे लई। इस तो इलावा ग्लोबल लैवल यानी कि इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया की जो विजिट करते हैं उन्होंने दे लई प्राइसलैस इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। मास्टर कार्ड के CEO का नाम इंपोर्टेंट रहेगा, रिसेंटली चेंज किए गए सी माइकल मायबैक, ठीक है। बेसिकली आई थिंक जनवरी के ही इन्होंने चेंज किया गया माइकल मीबैक। मास्टर कार्ड न्यूयॉर्क के हैडक्वार्टर है। नेक्स्ट है मारियो दरागी किहड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं?
ਮਾਰੀਓ ਦਰਾਗੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਸਰਜੀਓ ਮੈਟਾਰੇਲਾ। ठीक है, इन्हों द्वारा अपॉइंटमेंट की गई है मारियो दरागी, बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ भी रह चुके हैं। करंट अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ की गल करते हैं क्रिस्टीना लगार्डे ने। ठीक है जी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हैडक्वार्टर फ्रैंकफुर्ट जर्मनी के है। इटली की गल करते हैं, इटली कैपिटल रोम है, करंसी यूरो चलती है। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ की कैपिटल करंसी कमेंट बॉक्स के तुसी दसोगे, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी ईजी ने ये कंट्रीज। ठीक है, नॉर्मली न्यूज़ के रहिंदियां ने, नॉर्मली आपां इन्हां नूं डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज रेटेड एज बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर कंपनीज विच आर प्लैनिंग टू रीलोकेट देयर ऑपरेशंस आउट ऑफ चाइना। बेसिकली अनाउंसमेंट की गई कि चाइना दे विच जिहड़ी कंपनीज अपने आप नूं रीलोकेट करना चाहदियां ने। ठीक है, जिस तरीके आप पेपैल बारे डिस्कस किया सी, इंडिया दे विच पेपैल जो कंपनी है कैलीफोर्निया की कंपनी है, इसने इंडिया दे विच अपने बिजनेस नूं बंद कर लिया। ठीक है, तो इंडिया दे विच अगर बंद कर लिया किते होर जाके स्थापित करेगी। ठीक है, इसी तरीके नाल चाइना दे विच जो कंपनीज़ ने फॉरन कंपनीज़ अगर वो अपना बिजनेस चाइना तो बंद करके किते होर शिफ्ट करना चाहदियां ने तो किहड़ी कंट्री बेस्ट अल्टरनेटिव चुनी गई है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन यानी कि इंडिया और वियतनाम नूं बेस्ट ऑप्शन चूज किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया और वियतनाम नूं बेस्ट ऑप्शन चूज किया गया। वियतनाम कैपिटल हनोई है, करंसी डोंग चलती। नेक्स्ट है, which state has decided to provide 5 लाख रुपीज़ प्रैपरेशन मनी। केड़ी स्टेट ने डिसाइड किया कि 5 लाख रुपए प्रैपरेशन मनी दी जाएगी ओलंपिक गेम्स उन्होंने स्पोर्ट्स परसन नूं जिन्होंने क्वालीफाई किया ओलंपिक गेम्स के लिए। ठीक है, ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाने ने जुलाई अगस्त के विच। ठीक है, हुण जिन्होंने क्वालीफाई कर लिया उन्होंने 5 लाख रुपए दिते जाएंगे हरियाणा द्वारा। ठीक है जी, अगर आप गल करते हैं इंडिया के सब तो ज़्यादा स्पोर्ट्समैन हरियाणा के विचों ही निकलते हैं और सब तो ज़्यादा मैडल्स वगैरह भी हरियाणा के स्पोर्ट्स परसन को ही ने। इस तो इलावा मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर ने। गवर्नर की गल करते हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है जी, बाकी स्टेट्स रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले बिहार द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया है टू प्रिपेयर स्ट्रैटजी फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस। बेसिकली क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए और लो कार्बन डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम 1972 के बनाया गया सी। नैरोबी केनिया के हैडक्वार्टर है। इंगर एंडरसन इज द हैड ने। ठीक है, इस तो इलावा याद रखांगे खुशी चंदालिया का नाम, दिया मिर्जा ग्लोबल एंबेसडर ने UNEP के 2022 तक के लिए और खुशी चंदालिया नूं रीजनल एंबेसडर बनाया गया सी जो कि गुजरात तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, UNEP दे। उड़ीसा द्वारा रिवार्ड प्रोजेक्ट की अप्रूवल दी गई है। रिवार्ड प्रोजेक्ट डायरैक्टली पूछा जाएगा किस स्टेट द्वारा अप्रूवल दी गई है, किस स्टेट के शुरू किया गया है। रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, रिवार्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कर्नाटका सरकार द्वारा विजयनगर, पहले भी डिस्कस किया हुआ आपने कि विजयनगर उस टाइम अनाउंसमेंट की गई सी, हुण फाइनली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिता गया है विजयनगर 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका केड़ा है तो विजयनगर। विजयनगर कर्नाटका का किन्नवां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया सी तो 31st। ठीक है, इस तो इलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ने जड़ियाँ हंपी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस तो इलावा विरूपक्षा टैंपल भी
यूनैस्को की वर्ल्ड हैरीटेज साइट है, दोनों विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के चले गए जी। ठीक है, दोनों ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के ने। ठीक है, विरूपक्षा टैंपल कित्थे है? विजयनगर कर्नाटका के। हंपी इंपोर्टेंट रहेगा। हंपी बेसिकली 50 रुपीज़ के नोट के भी बनया हुआ है हंपी। इस तो इलावा तुंगभद्र रिवर के किनारे है हंपी। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक यूनीक म्यूजियम की अनाउंसमेंट की गई है। एक म्यूजियम की अनाउंसमेंट की गई है बेस्ड ऑन डकैट्स लाइक फूलन देवी। MP की गल करते हैं, MP के चंबल इलाका हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लेसिस ने MP के जिथे डकैट्स होंगे सी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डकैट्स होंगे सी, जिवें फूलन देवी का नाम हर एक ने सुनिया होगा। बॉलीवुड मूवीज़ भी आईयां ने काफ़ी इन्हां दे उत्ते। तां इन्हां दे लई एक यूनीक म्यूजियम बनाया जाएगा पुलिस हैडकुआटर भिंड सिटी दे विच पुलिस हैडकुआटर है, उत्थे एक म्यूजियम बनाया जाएगा पुलिस म्यूजियम। डायरैक्टली या रखांगे MP। नेक्स्ट है विच स्टेट और UT हैज़ जॉइंड हैंड्स टू वर्क ऑन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑन द इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग विद UK बेस्ड स्पेस एजेंसी नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम। UK की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसने इस दे नाल केड़ी स्टेट या UT ने एग्रीमेंट साइन किया है? जम्मू कश्मीर ने फ्लड फोरकास्टिंग के लिए एग्रीमेंट साइन किया है UK की स्पेस एजेंसी नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम। ठीक है, इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शनस के विचों, असम और मणिपुर रिलेटेड न्यूज़ है, काफ़ी इंपोर्टेंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, फ्लड की अगर आप गल करते हैं उत्तराखंड तो याद आएगा चंडोली डिस्ट्रिक्ट के विच फ्लड आया सीगा। ठीक है, तो जिहड़ा प्रोजैक्ट सीगा जिस दे नज़दीक आया सी ऋषि गंगा प्रोजैक्ट, याद रखांगे ऋषि गंगा। असम दे विच मैंडारिन डक जो कि काफ़ी रेयर स्पीसीज़ है डक दी। ठीक है, डक कहांगे कलर्ड डक, काफ़ी हरा मतलब एवरग्रीन कहांगे या काफ़ी रंगा वाला कहांगे। रेनबो के तरीके नाल डक है। मैंडारिन डक जो कि बेसिकली चाइना वर्गी कंट्रीज़ दे विच पाया जाता है। असम दे विच 118 साल बाद देखा गया। ठीक है, और किस प्लेस दे विच देखा गया? तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट की मगूरी मोटापुंग बील दे विच। ठीक है, सिंपली याद रखांगे तिनसुकी डिस्ट्रिक्ट मैंडारिन डक। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए ने पुलीगोरी वेंकटा संजय कुमार, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज सीगे। इस करके नाम इंपोर्टेंट रहेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज पुलीगोरी वेंकटा संजय कुमार को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया मणिपुर हाईकोर्ट के। ठीक है, इसी तरीके नाल याद होएगा सानू JS मुरलीधर का नाम आप डिस्कस किया सी। ये भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने इन्हों उड़ीसा के चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया सी उड़ीसा हाईकोर्ट के। ठीक है, इस तो इलावा दो इंपोर्टेंट होर आप कहा काफ़ी इंपोर्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना, क्योंकि फर्स्ट वूमेन सीगे तेलंगाना के सीगे हिमा कोहली, फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट के हिमा कोहली। और जम्मू एंड कश्मीर के इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि पंकज मित्तल अपॉइंट किए गए सी। गीता मित्तल फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस सीगे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के, इन्हों रिप्लेस करके पंकज मित्तल चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए सी। ठीक है, इस तो इलावा अगर होर भी इंपोर्टेंट आप काफ़ी कहांगे कि चेंजिस किए गए सी। सिक्किम के चेंज किए गए सी, गुवाहाटी के, आंध्र प्रदेश के चेंज किए गए सी। सारे नाम नहीं इंपोर्टेंट रहेंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रिवाइज करते चलांगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनूप गोस्वामी आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, अगर गुवाहाटी की गल करते हैं तो सुधांशु धुलिया हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।